Give the heading as application of derivative. This is what's that. We'll do this chapter in 3 parts. The first one being rate measure. The second part is monotonicity, that is increasing and decreasing functions. And the third part is maximum. Chलिए. First I do the theory part. The theory part is बहुत ही अजीब होता है. निकला आप लोग. Whenever a quantity y, whenever a quantity y varies with another quantity x, varies with another quantity x by some rule. By some rule, y is equal to f of x. By some rule, y is equal to f of x. Whenever one quantity y varies with another quantity x, satisfying some rule, y is equal to f of x, then dy by dx, or f dash x, dy by dx or f dash x represents the rate of change of y. The rate of change of y, dy by dx or f dash x represents the rate of change of y with respect to x. With respect to x. Or next line में लिखना dy by dx at x equal to a or f dash a represents the rate of change of y, with respect to x at x equal to a. Represents the rate of change of y with respect to x at x is equal to a. Get it? Got it? Okay, so this is all for the theory of the chapter. Let's start off with the questions. Question number 1. Question number 1 आपको लिखिएगा. A spherical soap bubble is expanding. A spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing. At the rate of 0.02 centimeter per second. At the rate of 0.02 centimeter per second. At what rate is its surface area increasing? At what rate is its surface area increasing? At what rate is its surface area increasing? When its radius is 5 centimeter. When its radius is 5 centimeter. When its radius is 5 centimeter. देखना spherical bubble में draw करें. अच्छा, अब आप सबसे पहले देखना आपका dr dt दिया है ना. आपका dr dt जो दिया है, बोलो what is dr dt given? dr dt is given as equal to, आप लोग उसको प्लस लिखने का मतलब आपका क्या है, वो इंक्रीज कर रहा है, तो प्लस ऑफ आपका 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और आपका सवाल किसका है बोलना, दे हैव आस्क्ड फॉर आपका क्या,
सरफेस एरिया, तो आप सरफेस एरिया को आप लोग क्या लिख लीजिए, यू टेक इट टू बी एज इक्वल टू आपका 4 बाय बोलो आर स्क्वायर। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताया आपका डीएस dt जो होगा, यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, आपका ये क्या हो जाएगा आपका 4 पाई, और आर स्क्वायर तो आपका क्या होगा 2r, और आर के लिए आपका क्या होगा dr dt। ठीक है ना, तो आई थिंक दे हैड आस्क्ड फॉर आपका डीएस dt कब पूछा है बोलना, दे हैव आस्क्ड फॉर डीएस dt when 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 r is equal to आपका 5। तो आप यहाँ पे इसको वैल्यूज डाल दीजिए, पाई की जगह पे आप लोग डालिएगा 22/7 इंटू आपका 2, r इज आपका 5, एंड dr dt आपको क्या दिया है बोलना, इट इज गिवन एज 2 बाय आपका क्या 100, है ना। तो आप इसको मैनिपुलेट करके बताएं आपका कितना आ जा रहा है, व्हाट इज इट कमिंग, जल्दी बताएं, डेसिमल में बताइए। It will come out to be as 2.512, है ना। और ऐसे सवालों में इफ यू आर नॉट गिविंग द यूनिट देन यू आर खत्म, है ना। तो आपका क्या होगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एनी डाउट्स? यस मिस। कोडाई कोडाई कुछ आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में आप लिखना लैडर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग लिखना a ladder 5 meter long, a ladder 5 meter long is leaning against a wall, a ladder 5 meter long is leaning against a wall, first बोले कि the bottom of the ladder is pulled along the ground, the bottom of the ladder is pulled, the bottom of the ladder is pulled along the ground, the bottom of the ladder is pulled along the ground, away from the wall, away from the wall, at the rate of 2 meter per second, at the rate of 2 meter per second. First, how fast is its height on the wall decreasing? How fast is its height on the wall decreasing? How fast is its height on the wall decreasing? When the foot of the ladder is 4 meters away from the wall. When the foot of the ladder is 4 meters away from the wall. When the foot of the ladder is 4 meters away from the wall. नहीं आ रहा है कैसे? अच्छा मैंने आपको क्या बोला? It is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meters per second. अरे नहीं समझ आ रहा है क्या आपको? हाँ बोलिए। यस मिस देखो बहुत बढ़िया। आइए देखिए मिस देखो, अब आप यहाँ पे देखना, ये जो आपका है दिस इज आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज आपका वाई एक्सिस, ऐसे ही अपने रेफरेंस के लिए लिया है, आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं। अच्छा हमने देखना ये जो लेंथ है, ये लेंथ को हमने क्या लिया है आपका स्मॉल एक्स लिया है, और ये आपका क्या है बोलना बताए आपका स्मॉल वाई है ना बात समझ। ऑब्वियसली एक्स एंड वाई आर बोथ आपका क्या वेरिएबल्स, क्योंकि आप इसको इधर करोगे तो आपका वाई गिरेगा, अगर आप एक्स घटाओगे तो फिर वाई क्या होगा बोलना बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा अब आप देखना लैडर का ये तो आपका कितना है बोलना 5 है,
तो चाहे x और y कैसे भी वैरी करें, they will always be related by the equation x square plus y square is equal to आपका क्या होगा, आपका 25, ठीक है ना। So you are differentiating with respect to t, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, आपका 2x dx dt प्लस आपका 2y dy dt is going to be equal to आपका क्या आ जाएगा बोलना सी, यानी कि आप यहाँ से मेरे को बताएं आपका क्या आ गया, x dx dt प्लस आपका y dy dt इस कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका कितना आ गया सी, है ना। अब आपका देखना, आपका क्या बोला गया है, x, आई थिंक ये आपका इधर लेके जा रहा है ना, इसका मतलब आप लोग देखना इसको हम इधर लेके जा रहे हैं, तो आपका dx dt आपको दिया है ना, ये जो आपको दिया गया है वो आपका dx dt दिया है, और dx dt अपने को क्या दिया है बोलना, व्हाट इज dx dt गिवन, इट इज गिवन एज आपका प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, वाई प्लस, क्योंकि आपका x आपका धीरे धीरे क्या कर रहा है बोलना, इंक्रीज कर, मुझे समझ आ रहा है, ये स्क्रीन को बना है। तो आप यहाँ पे देखना, और आपका अभी कौन से इंस्टेंट में पूछा है बोलना, when the foot of the ladder is, when the foot of the ladder is away from the wall, तो इसका मतलब आपका x क्या है बोलना, x आपका 4, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं क्या, x अगर आपका 4 होगा तो y क्या होगा बता सकते हैं, y क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम नहीं जानते हो? क्या ही कर सकते है ना, बहुत लोग हैं जिनको दुनिया में पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता, आप लोग भी उन्हीं में से कोई। ए आपका y क्या होगा बोलना 3, ठीक है, क्योंकि एक 5 है एक 4 है, तो आपका पैटर्न आप देखिए ना, आपका एक एक करके घट रहा है, तो आपका फिर क्या होगा बोलना 3 होगा। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए तो आपका x फिर क्या होगा 4, आपका ये क्या है बोलना +2 प्लस और आपका 3 और डिवाइड इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका 0 आ गया, तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका डिवाइड कितना आ गया बोलना, व्हाट इज डिवाइड कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज -8/3, और आपका क्या होगा बोलना मीटर पर सेकंड, है ना। और दैट माइनस जो है, दैट माइनस इज इंडिकेटिव ऑफ आपका क्या बोलना, दैट इज डिग्री, है ना, गॉट इट। तो आप लोग ना नेक्स्ट लाइन में आप लोग लिख के रखिएगा कि इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, लिख के रखिएगा इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, it is decreasing at the rate of 8/3 meter per second. It is decreasing at the rate of 8/3 meter per second, है ना। आप डिक्रीजिंग, आप आंसर में क्या पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा, एट व्हाट रेट इट्स डिक्रीजिंग, राइट, तो आंसर आपका क्या होगा बोलना 8/3, है ना, -8/3 मत कर दीजिए, फिर डबल नेगेशन हो जाएगा और आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ -8/3 मतलब वो इंक्रीजिंग। अगर नहीं आ रहा है क्या समझ में, yes miss, it reach a Paula, next question number 3, question number 3 now, sand is pouring from a pipe, sand is pouring from a pipe, sand is pouring from a pipe at the rate of, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. Bullet, the falling sand forms a cone on the ground. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone, in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. In such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. Full stop.
बोल रहे हैं हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग the radius of the base. Full stop. बोल रहे हैं कि how fast is the height of the sand cone increasing? When the height is 4 centimeter. 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 बोलो देखना गाइस अरे ये सैंड गिर रहा है आ गया आंसर आपका देखना डीवीडीटी आपका डीवीडीटी अगर आप कोण का देखोगे तो कोण का वॉल्यूम आपका कितनी तेजी से बढ़ रहा है बोलना आपका अबे प्लस बोल भाई अबे प्लस बोल भाई Got it? और आपका देखना कोण का वॉल्यूम के बारे में आपका क्या दिया है कोण का वॉल्यूम आपका क्या होता है पता है अबे चुप भाई आपका देखना वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज आपका 1/3 बाय r स्क्वायर h देखो एक आज पार्थुर बर्थडे Friday was the asking online Parthu everybody is asking for a treat Parthu আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মিস করে দিয়েছি হ্যাপি বার্থডে যে পার্থ বলছে হাউ ডিড ইউ নো নে আমি একটা কুকুরের ইমোজি পাঠাই ঠিক আছে ঠিক আছে ওটাই আমি সবাইকে পাঠাই এইটা বলতে পারি হ্যাঁ স্যার কি করে জানলো এইটা আমি বলতে পারবো কেউ কেন হয় কারণ কাজ নেই রাত্রিবেলা আমার মেসেজ করে জানাবে আর পার্থর বার্থডে देखना है आप दिख रहा है ना बहुत देखना बाली गिर रहा है यहाँ से अब सही है अब आप देखना आपका सवाल किसके बारे में है बोलो हेलो सवाल किसके बारे में है बोलना द रेट एट व्हिच आपका क्या इंक्रीज हो रहा है हाइट है ना
तो हमारा देखना यहाँ पे h और r दोनों ही वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे इस पे आपका सैंड गिरेगा तो आपका हेड भी h भी बढ़ेगा और आपका रेडियस भी बढ़ेगा, है ना। बट यू हैव, आपका हमारे सिलेबस में वी ओनली हैव कैलकुलेशन वन वे, ठीक है ना। यू डोंट हैव मल्टीपल वेरिएबल्स, वो आप लोग कॉलेज में करो। तो आप यहाँ पे देखना, होपफुली अगर आप कॉलेज जा रहे हैं फाइनली, तो आप यहाँ पे देखना आप, तो इसीलिए आपको कुछ और चीज दिया जाएगा जिससे यू कैन कन्वर्ट इट इनटू आपका क्या बोलना वन वे। इसीलिए हमको क्या दिया था, the falling, the falling sand is falling a cone in such a way such that the height is always आपका क्या बोलना the 1/6 of the radius of the base। तो आपका r is equal to आपका क्या हो जाएगा 6h। ये आप लोग बेकार में मेरे को डिले कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखना 1/3 पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा, what is r square, it is going to be आपका 36 8 स्क्वायर into आपका hr। तो आप बताएं therefore आपका v as a function of h, आपका ये कितना आ गया बोलना 12 पाई h क्यूब आ गया। अबे नहीं आ रहा है क्या समझ में, वर्ग। तो आप यहाँ पे देखना therefore आपका dv dt अगर हम लोग करेंगे तो आपका dv dt क्या आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका 12 पाई एंड आपका 3 h स्क्वायर आपका dh dt। आओ आओ, अब आप देखना dv dt आपको देता गया है 12 इज इक्वल टू 12 पाई 3। अच्छा ए आपको देखिए कहाँ पे पूछा था बोलना, जब हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया था ना, तो आप यहाँ पे देखना h स्क्वायर फिर कितना होगा आपका 16 16 16, अब देखना 12 12 कट गया, तो आप यहाँ से बताएं आपका dh dt कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट ऑफ दिस आपका 1/48 पाई। और यूनिट देना मत भूलना, यूनिट देना मत भूलना। देखो देखो यस, आपको कुछ समझ में नहीं आया क्या, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक आप लोग प्लीज मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए, लेना a point source of light, a point source of light along a straight road, along a straight road is at a height of a meters, is at a height of a meters। बोले कि a boy b meters, a boy b meters in height, a boy b meters in height is walking along the road, is walking along the road। बोले कि how fast is his shadow increasing। अब एक क्वेश्चन लिख भाई, how fast is his shadow increasing if he is walking away from the light, if he is walking away from the light at the rate of c meter per minute, c meter per minute। Yes Miss Beekhoff, आओ। अच्छा एक चीज जो आपको यहाँ पे सबसे पहले नोटिस करना है कि आपका जो बॉय है, बॉय का जो हाइट होगा वो आपका ये लैंप पोस्ट के हाइट से कम होगा, वरना आपका अगर मान लो कि छोटा सा लैंप पोस्ट है
तो फिर शैडो नहीं हो। आपको समझ में आ रहा है? तो आपका फिर शैडो नहीं होगा। तो आप देखो ये आपका क्या है बोलना, ए है, और ये आपका क्या है बोलना, बी। आया ना बात समझ में? गॉट इट? लाइक एनी डाउट्स? अच्छा, आप मेरे को बताएं, आपका यहाँ पे देखो लाइट जल रहा है, और आप यहाँ पे देखो गाइस, एक आदमी है यहाँ। He is walking away. Hey, got it? ये वैसे तो आपका ये बल्ब यहाँ पे होना नहीं चाहिए, क्यों बोलना? क्योंकि पॉइंट सोर्स से आ ये मैं आपका क्या सोचना, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? आप देखना, अगर आपका कुछ ऐसा देखो बाबू, आपका देखना, ये जो है ये आपका क्या है बोलना, ये आपका बंदे का क्या है, शैडो का आपका ये लेंथ है ना, और ये लेंथ को आप लोग पकड़ लीजिएगा क्या बोलना, एक्स। ये लेंथ को आप लोग क्या पकड़ लो बोलना, एक्स। अब जो बंदा है इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट एट द रेट ऑफ, आपका क्या दिया है बोलो, एट अ रेट ऑफ आपका सी मीटर पर मिनट। तो आपका सी मीटर पर मिनट में आपका विच क्वांटिटी इज चेंजिंग, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो, मतलब दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू। एक्स इज चेंजिंग है ना। तो आप यहाँ पे देखना, हमारा जो गिवन है आपका dx dt जो है, दैट इज गिवन एज आपका सी मीटर पर मिनट। इट इज गिवन एज आपका सी मीटर पर मिनट। गॉट इट राइट? और आपसे पूछा क्या गया है बोलना, द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इज चेंजिंग। तो आपको क्या पूछा है बोलना, आपका ds dt। तो आप देखना, ये फिगर देख के हमारे को तो मन कर रहा है, आप लोगों को भी मन कर रहा है क्या क्या लगाने का, टू रिलेट बिटवीन आपका एस एंड एक्स, सिमिलर ट्रायंगल्स। बहुत बढ़िया। आप देखना, ये जो आपका यहाँ से शैडो का टिप से ये बंदे का सर से लेके आपका पैर तक जो ट्रायंगल बन रहा है, देखो गाइस, तो ये ट्रायंगल आपका ये पॉइंट से ये लैम्प पोस्ट वाला ट्रायंगल वाला जो होगा, इसके साथ क्या होगा, सिमिलर। तो छोटू का एस और बड़े का क्या है बोलना, अबे नहीं, अबे बेवकूफ, आप यहाँ पे देखना क्या है, एक्स प्लस एस, और आप बताएं छोटू का क्या है बोलना, बी, और बड़े का आपका क्या है, ए। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताओ, आपका ए एस इज कमिंग आउट टू बी एस, आपका बी एक्स प्लस ऑफ आपका बी एक्स, आप इसको इधर करो। तो आप यहाँ से फिर मारे को बताओ, आपका a माइनस बी टाइम्स एस इज कमिंग आउट टू बी एस आपका bx। तो a माइनस बी तो कांस्टेंट है, आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आपका t, इज कमिंग आउट टू बी एस b आपका क्या, dx dt। और यही आपका dx dt क्या दिया है, c मीटर पर मिनट। तो यानी कि आप लोग मेरे को बताओ, आपका ds dt जो आ रहा है, ds dt आपका कितना आ रहा है बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एस bc बाय a माइनस बी, और यूनिट लिखना मत भूलना, आपका क्या होगा बोलना, मीटर पर
मीटर पर मिनट। नहीं आ रहा है क्या समझ? बोलिए बस पावर। नेक्स्ट आई एम गिविंग यू अ सेम क्वेश्चन, बस हम आपको फिगर्स मतलब वैल्यूज देंगे, आप जल्दी से मेरे को आंसर बताएं। लिखना, a man 160 centimeter tall, a man 160 centimeter tall, man 160 centimeter tall walks away from a source of light, walks away from a source of light situated at the top of a pole, situated at the top of a pole 6 meter high, situated at the top of a pole 6 meter high at the rate of 1.1 meter per second, at the rate of 1.1 meter per second. How fast is the length of his shadow? How fast is his length of the shadow increasing when he is 2 meter away from the pole? When he is 2 meter away from the pole, है ना? You have to give the answer in meter per second. जल्दी कीजिए। जल्दी बताएं, हमारे पास टाइम नहीं है।
A 0.4 is the right answer. I just can't believe it. ए, मैं कर दूं क्या? अच्छा, आप सबसे पहले एक चीज जो हम आपको बता दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं है. इट्स नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन दैट. ए, क्योंकि मी सब बीटा में कन्वर्ट कर लीजिए. आपका पहला वाला ये बताएं, आपका एक 160 सेंटीमीटर मतलब 1.6 होता है. बायोलॉजी কিছু জানে না, এদিকে ম্যাথস বলছে. बहुत बढ़िया. और आपका ये देखना, जब मेरे শেষ করুন. ए, आपको बताएं आपका डीएक्सटी कितना दिया है? 1.1 मीटर पर सेकेंड. ये देखो देखो देखो, आपका ये देखो, आपका सिमिलैरिटी से आपका s बाई एस प्लस एक्स इज 1.6 बाय आपका क्या आ रहा है 6. ये आप बताएं ये आपका कितना आ जाएगा? अबे बोल भाई, कितना आएगा? अबे बोल भाई, 16/60. हाँ, 4/15. ए, हम यहाँ पे देखना 15s. ए, आई थिंक मिस रुद्रुनी is talking. ए, तो आप हमें बताएं आपका फिर कितना आ जा रहा है? आपका 11, ये ct is coming out to be as whole into आपका कितना आ गया 1. तो आपका ये क्या होगा? आपका 10. तो आपका dsct आपका कितना आएगा? is coming out to be as 0.4 मीटर पर सेकेंड. अगर हमारे को पता होता कि आप लोगों से ये नहीं बनने वाला है तो हम स्टार्टिंग में ही बना लोगों, हमने ये बस आप लोगों को बनाने के लिए दिया था, बाकी पैसेस में लोग बना दिए थे, आप लोग नहीं बनाते. ठीक ठीक. आप यहाँ पे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. ए, जल्दी कर भाई, क्वेश्चन नंबर 30 तक जाना है. 13. लेकिन a horse runs along a horse runs along a circle. Horse
runs along a circle with a speed of 20 kilometers per hour. Yeah, you can mark this question as important क्योंकि आप लोग बना नहीं पाओगे. Full form. देखना a lantern at the center. A lantern is at the center of the circle. Lantern, L-A-N-T-R. A lantern is at the center of the circle. Full stop. A fence is along. A fence is along the tangent to the circle at the point at which the horse starts. At the point at which the horse starts. Full stop. बोलेगी the speed with which the shadow of the horse, the speed with which the shadow of the horse moves along the fence, at the moment it covers 1/8 of the circle, 1/8 of the circle in kilometers per hour. Option A 20, option B 30, option C 40, option D 60. Ow. You got it right? Anybody's having doubts? Miss Ahona. Or supplements. Draw तो बोलना भाई था बताओ हो गया बताए कौन सा ऑप्शन क्यों ऐसे भाई got it. Anybody's having doubts, then please let me know. Okay. ए लैंटर्न किधर है लैंटर्न किधर है अरे लैंटर्न किधर है लैंटर्न किधर है अबे लैंटर्न किधर है बता सर्कल के सेंटर है ना और आपको किसके बारे में पूछा है बोलना ए शैडो मूवमेंट ऑन द फेंस शैडो मूवमेंट ऑन द फेंस एंड वेयर इज द हॉर्स बोलना हॉर्स इज रनिंग ऐसे ऐसे हॉर्स इज रनिंग ऐसे हॉर्सेस क्या बोलना रनिंग है ना
और आपका कौन से इंस्टेंट पे पूछा है बोलना? आपका 1/8 ऑफ द सर्कल। 1/8 मतलब आपका क्वार्टर का भी आधा, ठीक है ना? बोलो बोलो। अब आप देखना हम क्या कर रहे हैं कि हम ना आओ, दिस इज आपका क्या है बोलना, द रेडियस ऑफ द सर्कल ले लिया हमने, और ये लेंथ को हमने क्या ले लिया बोलना, एक्स, और आपका ये क्या है बोलना, थीटा। आप लोग ये जान के खुश होंगे कि आर आपका कांस्टेंट है। व्हाई? क्योंकि इट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक्स आपका चेंज होगा। व्हाई? क्योंकि ऐसे हॉर्स दौड़ रहा है ना, हॉर्स जब आपका यहाँ पे होगा तो शैडो यहाँ पे, हॉर्स यहाँ पे होगा तो शैडो फिर यहाँ पे होगा। ए आया ना बात समझ में? हाँ, गायब कर दे इसको। ए आ गया क्या? अब आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं, आपका एक्स चेंज होगा तो कौन चेंज होगा? थीटा के इस हिसाब से चेंज होगा, ऑब्वियसली वो दौड़ ही रहा है थीटा चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे देखना, आपका जो tan थीटा होगा, tan थीटा आपका क्या होगा बोलने, इज गोइंग टू बी आपका x बाय आर। तो आपका x जो होगा, x इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका r क्या होगा, बोलो बोलो। तो आप यहाँ पे मारे को बताओ, आपका dx dt आपका क्या होगा, r, और हमारा क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और आपका डी थीटा थीटा। आशु आशु। अब आप यहाँ पे देखना, अब आप लोग तो आई थिंक वैसे फिजिक्स नाम के वास्ते ही पढ़ते हैं। आपको पता है क्या डी थीटा डी थी को हम ओमेगा कहते हैं? जानते हैं क्या? ओ, बहुत बढ़िया। और आप लोग बताएं आपका आर ओमेगा क्या होगा? ये व्हाट इज आर ओमेगा? इट्स द वेलोसिटी ऑफ द हॉर्स। इट्स द वेलोसिटी ऑफ द हॉर्स। तो आपका ये क्या आएगा बोलना, वेलोसिटी ऑफ द हॉर्स और सीकेंट स्क्वायर थीटा। देखो 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 देखो। तो आपका देखना dx by dt कब पूछा है बोलना, आपका 1/8 ऑफ द सर्कल। 1/8 ऑफ द सर्कल मतलब आपका क्या होगा, पाई बाय थीटा इज इक्वल टू पाई बाय कितना? अबे 2 पाई बाय 8 भाई, पूरा 2 पाई है भाई, 8 करने से पाई बाय 4 आता है भाई। अबे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये आपका देखना, ये आपको 20 दिया है और आपका सीकेंट स्क्वायर ऑफ आपका पाई बाय 4 आ गया। तो आपका ये कितना आ गया बोलना, आपका 20 इंटू आपका 2। तो आपका आंसर कितना आ गया बोलना, 40 किलोमीटर पर आवर। देखना, आप लोग प्लीज मेरे को डिस्टर्ब मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिखना मिस पॉला, लिखना। The surface area of a spherical balloon. The surface area of a spherical balloon is increasing at the rate of is increasing at the rate of 2 centimeters square per second. 2 centimeters square per second. Full stop. Only at what rate is the volume of the balloon increasing? At what rate is the volume of the balloon increasing when its radius is equal to 6 centimeter? When its radius is equal to 6 centimeter. है ना बात समझ? तो आप देखना ये क्वेश्चन में आपका डी दिया है, डी पूछा है। तो हम ना डी से आगे फर्स्ट गो टू आपका क्या डी और डी की मदद से हम तो क्या निकालेंगे, मतलब डी। अबे नहीं आएगा समझ में, ये औरत। आओ देखो, आपका जो एस है, ये आपका यहाँ पे फिगर इन कंसर्न क्या है बोलना, इट्स अ स्फेरिकल बलून। ये स्फेरिकल बलून का आप पता है आपका सरफेस एरिया क्या होता है? छी छी छी,
इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। कैसे नहीं बोल पा रहा? ओ अच्छा, तो आप यहाँ पे देखना आपका ds dt जो है, ds dt आपका क्या होगा बोलना 4 पाई, और आर स्क्वायर के लिए क्या होगा आपका 2r। बोलो, बोल। आपका dr dt देखना है? और आपका देखना ds dt आपको क्या दिया है बोलो, ds dt आपको क्या दिया है 2। अब आप बताएं आपका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। वाओ, तो आप हमें बताएं आपका डीवीडीटी क्या होगा बोलो, सब लोग बोलो 4/3 पाई, सब लोग बोलो 3r स्क्वायर, और आप बोलो आपका क्या आ गया डी आर। तो आप मारे से यहाँ पे मारे को बताओ, आपका देखना आपका 3 3 कैंसिल, आपका 3 3 कैंसिल भाई 3 3। और आप हमारे को बताओ आपका यहाँ पे देखना 4 पाई आर स्क्वायर है, और 4 पाई आर डी आर dt 1 है, तो हम में से एक ही आर ले रहे हैं, और हमने डी आर डी टी लिखा, और जो आर स्क्वायर का रिमेनिंग जो आर है उसको हम बाद में लिखा। ए गॉट इट राइट? हाँ, तो आप हमें बताएं आपका ये जो क्वांटिटी है, ए का वैल्यू आपका 1 है देखो। तो आपका देखना कब पूछा है, तो हमारा डीवीडी थी आपसे कब पूछा गया है बोलना जब r बराबर 6। r बराबर 6 मतलब यहाँ पे आपका है, आपका r ही एक बचा है, तो आंसर होगा 6। और आपका यूनिट क्या होगा बोलना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड देखना। आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आओ। তুমি কি করে জানবো? বলছে সবাই জানতে পেরেছে। আমি ভাবলাম কালকে ওর সাথে স্টোরি দেবো আমার ফটোটা, তারপর দিলাম। ব্যাস ব্যাস। লিখনা দেখলে? ওর তো একটা এই কি ফিটজি वाला না কি একটা ইউজ করে। এই আজকেও দেখলাম, আজকেও দেখলাম। আরে অ্যাকাউন্ট ও তারা একটা ডিলিট করেছে, তাদের সেটা বলছিল না ইমানি তুমি ভেবে করতে পারো যেখানে ইচ্ছা করো। পাসওয়ার্ড আগে তুমি সবাইকে বলবে আপনি আমারও পাসওয়ার্ড এ মে আরে হ্যাঁ রে চেঞ্জ করে দিয়েছো? এ লিখনা if water is poured into an inverted, ঠিক আছে তাহলে ডিলিট করে দিচ্ছি, রিমুভ করে দিচ্ছি। লিখনা if water is poured into an inverted hollow cone, water is poured into an inverted hollow cone, whose semi-vertical angle, whose semi-vertical angle, whose semi-vertical angle
is 30 degree, whose semi-vertical angle is 30 degree. Yes, आपको नहीं समझ आ रहा है क्या? बहुत good. Such that the depth, such that the depth, such that the depth, ब्रैकेट में लिखना measured along, ब्रैकेट में लिखना measured along, such that the depth, ब्रैकेट में लिखना measured along ब्रैकेट में लिखना such that its depth, ब्रैकेट में लिखना measured along the axis increases at the rate of, increases at the rate of, increases at the rate of 1 centimeter per second. 1 centimeter per second. बोल रहे हैं कि find the rate at which the volume of water increases. The volume of water increases when the depth is 24 centimeter. When the depth is 24 centimeter. When the depth is 24 centimeter. Please आप बात मत करें. हो गया? अरे कीजिए भाई. आपका यहाँ पे देखना क्या दिया गया था. DHCT दिया था और आपसे पूछा क्या गया था. आपसे पूछा क्या गया था. DHCT दिया था और आपसे क्या पूछा था. DVDT. तो DVDT पूछा मतलब आपका फिर क्या होगा बोलना बता. आप वॉल्यूम को किसके टर्म्स में लिखोगे आगे. DH, हाँ H के टर्म्स. और आपको अगर यू हैव टू रिलेट R and H, तो R and H को रिलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बोलना बताएं. आई यूज आपका जो सेमी वर्टिकल एंगल दिया है, जो हमारा कितना दिया है बोलना 30, है ना. तो आप हमें बताएं आपका जो tan 30 डिग्री होगा, tan 30 डिग्री बराबर आपका क्या होगा. व्हाट इज tan 30 डिग्री. हाँ हाँ, ये तो 1/√3 है. बिल्कुल बताएं, आप फिगर देख के बताएं वो आपका क्या होगा बोलना. इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू R/H. यानी कि आपका जो R है, R इज कमिंग आउट टू बी एज आपका H/√3. ठीक है ना. तो आप हमें बताएं आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो आपका कितना आ जाएगा 1/3. बोलो, अरे बोलो. बाई R² H है ना. देखना
तो आपका वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ एच देखिए, ये आपका कितना आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब आपका एच स्क्वायर बाई 3 इंटू आपका एच आ गया। तो आपका देखना यानी कि इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका पाई बाय 9 और आपका यहाँ पे एच क्यूब आ गया। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं, आपका डीवी dt जो है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका पाई बाय 9 और आपका 3 एच स्क्वायर डी एच डी टी, है ना। तो आपसे देखना क्या पूछा है, दे हैव आस्क्ड यू फॉर आपका डीवी dt व्हेन आपका क्या पूछा है, डेप्थ आपको क्या दिया है इस 24 सेंटीमीटर। सो एच इज आपका क्या होगा आपका 24 सेंटीमीटर। तो आपका ये तो कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू पाई बाय 3 और यहाँ पे आपका कितना आ गया 24 इंटू आपका 24 और डी एच डी टी आई थिंक आपका 1 है। तो दिस इज आपका 8 से कटा 24 into 8 is 192, तो आपका 192 पाई 192 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है वाटर इज लीकिंग, water is leaking, water is leaking from a conical funnel. Water is leaking from a conical funnel at the rate of 5 centimeter cube per second. At the rate of 5 centimeter cube per second. Only if the radius of the base of the funnel, if the radius of the base of the funnel is 5 centimeter and the altitude is 10 centimeter and the altitude is 10 centimeters. Well, then find the rate at which the water level is dropping. Find the rate at which the water level is dropping. When it is 2.5 centimeter, when it is 2.5 centimeter from the top, when it is 2.5 centimeter from the top, from the top. अबे नहीं आ रहा है इसमें, अबे बोलिए फुल बेवकूफी का बताएं, बहुत बढ़िया। अगर आप लोग फुल बेवकूफ हैं तो आपको सलाम। अरे आप कीजिए भाई, मैंने आपको करने दिया है। आप अगर बैठे रहोगे कि आदमी कब करेगा और फिर हम टाप लेंगे तो उस वक्त तो फिर आपको बोरिंग लगेगा ना। आंसर आ जाने की जल्दी मेरे को बताएं।
अबे तो आंसर बोल दो भाई, ऐसे क्या 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 करते हैं? गलत। प्लीज। आओ, देखो ये अपने को कितना दिया है, 5, और ये अपने को कितना दिया है बोलो, These are drawing also. Gonna take the repeat. आपका 10। गॉट इट, थैंक्स। अच्छा, अब अगर देखना, इसको अगर हमने आर लिया और इसको एच, तो आर और एच को रिलेट कैसे करेंगे बोलना, विद द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अबे नहीं आ रहेगा सब। आप बताएं, आपका छोटू का आर, छोटू का आर आपका बड़े का क्या होगा? हाँ, 5। और आप लोग बताएं छोटू का एच, छोटू का एच, छोटू का एच आपका बड़े का क्या होगा? 10। तो आप यहां से देखो, बताओ आपका आर इज कमिंग आउट टू बी एस इक्वल टू, आपका क्या आ रहा है बेटा, एन। तो आप देखो, बताओ आपका जो वॉल्यूम है वो आपका कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपसे आपको देखना है, डीवी डीटी दिया है और पूछा क्या है बोल, आप आपका डीवी डीटी दिया है और पूछा क्या है, डीएचडीटी। ये डीएचडीटी पूछा है ना आपसे, तो आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर, आपका आर स्क्वायर क्या आएगा बोलना, h²/4 इंटू आपका क्या आ रहा है बोलना, x। तो आपका v कितना आ गया बोलना, आपका π/12 और h³। तो आप यहां से मेरे को बताओ, आपका डीवी dt कितना आ रहा है बोलना, π/12, एंड दिस इज गोइंग टू बी आपका 3h²। आओ, तो आप मेरे को बताएं, आपका डीवी dt कितना दिया है, इजी। आओ, दिस इज π/4 और h क्या होगा, अबे 7.5 होगा भाई। आपका कब क्या पे दिया है करना, 2.5 फ्रॉम आपका टॉप, तो फिर ये h का वैल्यू क्या होगा, 7.5 मतलब 15/2, 15/2 को स्क्वायर करने से आपका कितना है, 225 बाय आपका 4। एक्चुअली डीवीडीटी आपका लीकेज हो रहा है तो आपका नेगेटिव लीकेज हो रहा है। आओ, तो आपने बताया आपका डीएचडीटी कितना आ गया बता, आई थिंक 5 225 को कैसे काटे, 45 से, तो आपका माइनस ऑफ आपका 16 बाई क्या आ गया, 45 बाई, है ना। और आंसर क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। वो वो आगे बढ़े, किसी को अगर कोई डाउट है अलग से, डन, এটা ভালো এটা ভালো।
बेटा देखिए अब I don't keep any of this. Yeah, I don't keep the lines. What do you mean? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये मेंस का पीवाईक्यू है। 10 11 12 मेंस पीवाईक्यू से लिखना। द सरफेस एरिया ये पार्ट से आपका डिफिकल्ट ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, बट एओडी से आता है जनरली। इंक्रीजिंग मैक्सिमम वहां से आता है ना। देखना आपको द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब is increasing at the rate of 3.6 meter square per second, comma, retaining its shape. मतलब वो सरफेस एरिया इंक्रीज होने के साथ साथ वो क्यूब ही रहे, है ना। comma, then the rate at which the volume is changing, in centimeter cube per second. The volume is changing in centimeter cube per second when the length of the side of the cube is 10 centimeter. 10 centimeter. अच्छा, this is centimeter square. This is centimeter square. आज नहीं तो ऐसा भाग चले बोल दे यार बिजनेस को। देखना ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 20, इसमें सूप का ए आप देखना क्यूब की साइड लेंथ को आप लोग ले लीजिए। तो आपने बताया आपका सरफेस क्या होता है। अबे 6 a² होता है भाई। अबे नहीं पता है क्या भाई। तो आपने बताया भाई कि आपका जो डीएस dt होगा भाई। अबे डीएस dt बोल भाई। आपका क्या होगा भाई। आपका 12a क्या होगा भाई। आपका डी, है ना। अब आप देखना ये आपने को क्या दिया है। आपका 3.6 is equal to 12 ADDT. तो आपका ये तो इसको कैसे काटेगा 3/10.3। तो आप यहां से फिर मारे को बताओ आपका DADT कितना आ गया। इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 3 बोलो, अरे बोलो 10। देखना अब वॉल्यूम क्या होगा बोलना। वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यू। तो आपने बताया आपका डीवीडीटी क्या होगा। अरे बोलो 3a² DADT। आओ तो आपका कितना आ जाएगा 3a² और DADT क्या आएगा 3 आपका क्या 10। आओ आओ तो आपका देखना कितना आ गया 9a आपका। अब आपसे देखना क्या पूछा है डीवीडीटी का। डीवीडीटी आपका कब पूछा है बोलना जब a इज इक्वल टू 10। तो आपका देखना 9 इंटू 10/10। तो आपका 10 10 कट गया। आपका ये कितना आ जाएगा 9
सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बोलना गाइस? Anybody is having doubts? Anybody? No, right? Next. আসো क्वेश्चन नंबर 11 के আমরা তারা দিয়ে সাজাই। देखना the surface area of a balloon देखना the surface area of a balloon the surface area of a balloon of spherical shape being inflated increases at a constant rate Well, then initially the radius of the balloon initial the radius of the balloon is 3 units. Initially, the radius of the balloon is 3 units up. And initially, the radius of the balloon 3 units. And after 5 seconds, the radius becomes 7 units. And after 5 seconds, the radius becomes 7 units. Then it's radius after 9 seconds. Then its radius after 9 seconds is equal to option A 9, option B 10, option C 11, option D 12. Units, subunits. I'll repeat. The surface area of a balloon of spherical shape being inflated. The surface area of a balloon of spherical shape being inflated increases at a constant rate. Full stop. Initially, the radius of the balloon is 3 units. And after 5 seconds, it becomes 7 units. तो बोल रहे हैं कि then the radius after 9 seconds is equal to आपका ऑप्शन ये सब 9 यूनिट्स हैं 11 यूनिट्स हैं 10 यूनिट्स हैं 12 यूनिट्स हैं अबे ये यार ऐसे नहीं बताओ आगे बढ़े ए कीजिए मैं करूं क्या सरफेस एरिया आपका क्या है बोलना व्हाट इज सरफेस एरिया सरफेस एरिया आप लोग जानते हैं क्या व्हाट इज सरफेस एरिया ओ बाय आर स्क्वायर तो आपका देखना आपको क्या दिया है डीएस डीटी आपको कांस्टेंट दिया है ना तो आप यहां पे देखना आपका डीएस डीटी व्हाट इज डीएस डीटी बोलो अरे बोलो 4 बाय what
dr dt is equal to आपका इट्स कांस्टेंट, इसके ओवरलैंड देखना, तो आप यहां पे देखना r dr dt it is coming out to be is equal to बोलो आपका लैम्डा बाय आपका क्या आएगा 8 पाई, जो आपका एक और क्या होगा कांस्टेंट ऑफ k दे दिए सब कुछ, है ना। तो आप यहां से फिर मारे को बताओ, आपका फिर आर डी आर जो है, आर डी आर बराबर आपका फिर क्या आ गया बोलो, ये डी टी आओ, दोनों साइड को इंटीग्रेट करो, दोनों साइड को इंटीग्रेट करो, तो आप हमें बताओ आपका यहाँ पे क्या आ गया बोलो, आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू के टी प्लस अब आपका सी आओ, यानी आप हमें बताएं आपका आर स्क्वायर बराबर आपका क्या आ गया बोलना 2 के टी प्लस अब आपका 2 सी आओ, ठीक है। अब आप यहाँ पे चलिए हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर इनिशियली जब देखना आपका t इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 0, तो उस वक्त आपका r कितना था बोलना आपका 3, तो आप हमारे को बताओ आपका आर स्क्वायर मतलब 9 बराबर आपका t तो 0 है, तो ये 0 प्लस अब आपका क्या होगा 2c आओ देखो, तो आपका 2c का वैल्यू कितना आ गया बोलना 9, यानी कि हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है बोलो, व्हाट इज द इक्वेशन, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 2kt प्लस ऑफ आपका कितना 9, अब हमारा देखना आपको क्या दिया है t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 5 पे r इज इक्वल टू क्या दिया है बोलो 7, तो आप यहाँ पे देखना आपका कितना आ गया बोलना बोलो, कितना आ गया, दिस इज 49 इज इक्वल टू टी, आप लोग 5 डालो तो आपका कितना आ गया 10k प्लस ऑफ आपका 9, तो आपका देखना k का क्या वैल्यू आ गया, ये तो 40/10 आपका 4 आ गया, देखना भाई जहां से मारा, फिर आर स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया बोलना बोलो, दिस इज आपका 2 इंटू 8t प्लस ऑफ आपका 9, तो आपका देखना कब पूछा है बोलना आपका t इक्वल टू 9, तो आपका आर स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया बोलना आपका 72 प्लस ऑफ आपका 9, तो आपका आर स्क्वायर 81 आ गया, तो आपका आर कितना आ जाएगा बोलना, इट विल कम आउट टू बी एज आपका 9 यूनिट्स, देखना ऑप्शन ऐसा कोई है जिसको सब समझ आ रहा है, বড় করে দিলাম বেলুন কেন বলতো, কেন বলতো না, ফোলানো হচ্ছে ভাই, রেডিয়াস ইজ ইনক্রিজিং, কে আমি রাইট কেন বলবে ভাই, ও 100 আর 100 সব কাটবে, হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে, চশমার দোকানের নাম হচ্ছে দা আইস, আরে ভাই আইস কি থাকতো তাহলে চশমা নিয়ে করতে আইস খারাপ খাই চন্ডিদাস মারে বিজোড় ইউ হ্যাভ টু ফাইট
এখানে নিচে লেখা আছে, এখানটায় লেখা আছে সি মোড। সি মোড কি করবো ভাই এখানে? এইটা কি? बेवकूफ समझ में नहीं आ रहा भाई। ए आगे बढ़े, नेक्स्ट आओ देखो क्वेश्चन नंबर 12 का आनंद उठाते हैं सब मिलके। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, हमारे जमाने का सवाल था। अब इस बार ये है इसी साल या उसका एक साल पहले या बाद का सवाल। हाँ, बहुत साल पहले की बात। तो आप यहाँ पे देखना, a spherical balloon, a spherical balloon, a spherical balloon. A spherical balloon is filled with spherical balloon is filled with 4500 pi cubic meter of gas, of helium gas, of helium gas. Full stop. बोले कि if a leak in the balloon causes the gas to escape, at the rate of 72 pi cubic meter per minute. Cubic meter per minute. बोले कि then the rate bracket में लिखना meter per minute at which the radius of the balloon is decreasing. The radius of the balloon is decreasing. 49 minutes. 49 minutes. 49 minutes after the leakage began. 49 minutes after the leakage began. Then the rate, bracket में in meter per minute, at which the radius of the balloon decreases. 49 minutes after the leakage began. After the leakage began. Option A. 9 by 7. Option B. 7 by 9. Option C. 9 by 2. And option D is 2 by 9. Dance.
You are eligible for bond. Or you have become eligible for Chandigarh. Nice. এদের দাম তুমি একবার সবাই দিয়ে দিতে Obviously. না আরো করে এরা আরো করে তারা আমাদের খোলার জন্যই দিল এই হাতটা মাত্র ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি একদিন বলতে দিবে না তুমি সে বললে और Yes. Story দিকে বল করো আরে তাড়াতাড়ি করো সব হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে ভাই ওই কিছু করছো नहीं और एक ही सवाल बचा है इसलिए मैंने ये आपको कर दिया হ্যাঁ वैसे ওর জন্য বর্ষা সবাইকে যাওয়া দিয়েছে बहुत बढ़िया और पूरी लो आइए और पूरी दिखाई दे अपना कॉपी आइए आइए हम चेक करेंगे आइए आइए আরে आइए फास्ट आइए आइए अरे आइए ओए यो इन भवनों के लिए राजनीति मामले में
ये मानो कि कार्यक्रम का मैं देख सकते तो जल्दी जाओ So there is a private. The train is called Gandhi Road. आज का मैं देख जल्दी करो भाई। हाँ लिख हो रहा है। हाँ फिर स्ट्रक्चर देखने लगा तो फिर नहीं हो रहा सवाल। It has to retain its shape. ठीक है फिर कर दे रहे गाइस। आप माने को बताओ आपका वॉल्यूम सिर्फ एक चलेगा युवा फिर 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप मेरे को बताओ आपका डीवी जो होगा आपका डीवी आपका क्या होगा 4/3 पाई और 3r² बोलो dr dt। अब आप देखना आपका जो डीवी दिया है वो आपका कितना दिया है बोलो बाबू। आपका -72 पाई देखना इज इक्वल टू आपका 4 पाई r² dr dt। देखो पाई पाई गया ये आपको क्या देगा बोलना 18। तो आप देखना आपका जो dr/dt आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है बोलना -18 आपका क्या आ रहा है बोलना r² आ रहा है। देखो बाबू r² आ रहा है देखो बाबू r² आ रहा है देखो बाबू। बट हमको देखना ये कौन से इंस्टेंट में करना है बोलना। आपका सवाल कब का है आपका लीकेज होने के आपका 49 मिनट्स बाद। तो आपका 49 मिनट्स बाद जो रेडियस है वो आपको बिठाना हो। तो वो रेडियस को हम सपोज एज्यूम कर रहे हैं कि आपका r आफ्टर 49 मिनट्स इसको आप लोग पकड़ लीजिएगा सपोज आपका r स्टार। क्या पकड़ लिए हमने r स्टार। तो आप यहां को बताओ आपका 4/3 पाई r स्टार क्यूब will be equal to आपका क्या होगा बोलना आपका व्हाट विल बी आपका कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपका बचा रहेगा एयर या गैस जो भी है। आपका इनिशियली तो आपका कितना था 45 100 पाई और आपका देखना 49 मिनट्स तक लीक हुआ है और एवरी मिनट में आपका 72 पाई आपका निकल चुका है। तो आप लोग मारे को बताओ
आपका 4/3 पाई आर स्टार क्यूब इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्शन करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। हाँ, 997 आओ देखो, पाई पाई कट गया, ये इसको 243 से काटा, तो आपका देखना आर स्टार क्यूब is coming out to be as 243 into 3, that is 729, which is आपका 9 क्यूब, जहां से आप लोग मारे को बताओ आर स्टार इज इक्वल टू क्या आ गया बोलना 9 है ना। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताओ आपका TRDT जो है ये हमको कब निकालना है बोलना, जब आपका R इज इक्वल टू आर स्टार और आर स्टार इज इक्वल टू 9, तो आपका ये कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एस -18 बाय आपका 81। ये आपको क्या लग रहा है 1 और 1 8 और 8 कट जाएगा, किससे कटेगा बोलना, ए, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा बोलना, ऑप्शन डी, क्योंकि आपको DRDT तो आपका कब निकालने दिया है, आपका 49, you have to take the radius which is after 49, not the initial। तो 49 यूनिट्स के बाद वो छोटा हो गया है, इनिशियली बड़ा था, मैंने बड़ा ड्रॉ किया, अभी ऐसा हो गया है ना। तो 8 स्टार आपका मतलब इसीलिए हमने निकाला, नहीं आया क्या बात समझ, बात आओ आओ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बोल रहे हैं लिखना ऑयल इज लीकिंग, oil is leaking from a vertically kept oil. Oil is leaking from a vertically kept cylindrical tank. Oil is leaking from a vertically kept cylindrical tank at the rate of 18 centimeter cube per second. Also, if the radius of the tank is 14 centimeter and the height is 60 centimeter and the height is 60 centimeter, then the rate at which the oil level is changing, then the rate at which the oil level is changing is equal to option ब्रैकेट में लिखना चेंजिंग, ब्रैकेट में लिखना इन सेंटीमीटर पर सेकंड।
I mean, ये आपको समझना है, ये एक्चुअली इट्स अ मच इजियर क्वेश्चन दैट यू आर थिंकिंग, क्योंकि यहाँ पे आपका r जो है ना इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, नॉट अ ग्रोथ, है ना। एक शॉट r तो आपका ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना। आपका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो आपका क्या है, इट इज पाई r स्क्वायर h, तो बेसिकली आपका पाई r स्क्वायर एंटायरली कांस्टेंट ही होगी। अबे नहीं समझ आ रहा है क्या, क्योंकि आपका जैसे जैसे लीक होगा आपका h ही गिरेगा, r में कोई बदलाव आएगा क्या बोलो, r में कोई बदलाव आएगा क्या बोलो, नहीं है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बलून नहीं है कि आपका तेल बाहर जा रहा है तो टैंक भी छोटा हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो बहुत। तो आओ आप देखो, r स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, ए आपका डीवीडीटी कितना दिया है, -18 बाय 14 PhDT आओ, 2 से काटो, तो आपका DHDT कितना आ गया, आपका -9 बाय, है ना। यहाँ पे देखना, आई थिंक मैंने चेंजिंग ही दिया, चेंजिंग देने का मतलब यू हैव टू टेक इट अलोंग विद द साइन, है ना। मैंने डिक्रीजिंग तो नहीं दिया, मैं इंक्रीजिंग कुछ नहीं दिया, तो चेंजिंग मतलब यू विल टेक इट, आपका क्या बोलना माइनस में देंगे हम, माइनस मतलब वो क्या होगा बोलना डिक्रीज कर। Okay guys, we'll stop for here for the day and thank you for joining this class. Thank you everyone. Bye bye. Take care and have a good day.